جی عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی پیارے بچوں، اسلام لازمی سال اول کا ہمارا جو تیسرا چیپٹر ہے اس کا آخری ٹاپک ایز اے لانگ کوسچن وہ آج ہم پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ذکر. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا صبر و استقلال، وہ بھی ایک لانگ کوسچن تھا. یہ جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی لانگ کوسچن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسمارٹ سلیبس ہے تو اس میں وہ عفو و درگزر وغیرہ نہیں ہے. تو اس تیسرے چیپٹر کا آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے ذکر. اور جس طرح ہم نے صبر و استقلال میں سب سے پہلے ہم نے مفہوم پڑھا تھا، اسی طرح ذکر کا بھی ہم مفہوم پڑھیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم لغوی معنی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اصطلاحی مفہوم. لغوی معنی کیا ہوگا؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، کسی کو بھی یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے. اس کا یہ ورڈ میننگ ہے، یہ جو لفظ ذکر ہے اس کا معنی ہے یاد کرنا. مطلب یاد کرنا. اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا؟ اصطلاحی مفہوم یعنی دین کی اصطلاح میں ذکر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا نام ذکر ہے. تو چونکہ ایک لانگ کوسچن ہے بیٹا، پہلے میں آپ کو یہ مکمل جتنا بھی اس کا مٹیریل ہے وہ میں پڑھا دیتا ہوں شارٹ کوسچن کے حساب سے بھی، اور جہاں جہاں MCQs بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد آخر میں آپ کو ساری آؤٹ لائنز دے دوں گا کہ لانگ کوسچن ہم نے کیسے بنانا ہے، کس طرح لکھنا ہے. جی بیٹا، ذکر کا معنی یاد کرنا، اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں بھی لفظی معنی آتا ہے، ورڈ میننگ آتا ہے، وہ MCQ لازمی بنتا ہے. تو ذکر کا کیا معنی ہوگا؟ یاد کرنا. اصطلاحی مفہوم آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہے ذکر کی فضیلت قرآن کی روشنی میں. شارٹ کوسچن بنے گا ذکر سے متعلق یا ذکر کی فضیلت سے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. بیٹا شارٹ کوسچن لکھ لیں، ذکر کی فضیلت میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. جی پیارے بچوں، ذکر کی فضیلت میں قرآنی آیت کا ترجمہ. یہاں پہ 3 آیات دی ہوئی ہیں، آپ کی مرضی کوئی سی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی ہم آیت دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب کی آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 10th کلاس میں. آیت کیا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ آیت ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اس کے بعد تیسری ایک اور آیت بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی پیارے بچوں، ان تینوں آیات میں سے کسی کا بھی ترجمہ اس کے جواب میں لکھا جا سکتا ہے. تو چونکہ عربی میں نہیں لکھتا، آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. آپ بک پہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا. یعنی اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. اسی طرح دوسری آیت ہے رجال لا تلہیہم. رجال کا معنی ہوتا ہے مرد، یہ رجلن کی جمع ہے. رجال، رجلن کی جمع، رجال، رجال کا معنی بہت سے مرد. یعنی اللہ کے جو نیک برگزیدہ صالحین مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ مرد کیسے ہوتے ہیں؟ لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی. تجارتن ولا بیع، نہ سودا کرنا انہیں غافل کرتا ہے، نہ ہی خرید و فروخت کرنا انہیں غافل کرتا ہے. کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو پیارے بچوں، اب یہاں پہ ہم MCQ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک صالح برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں انہیں لین دین اور خرید و فروخت کس چیز سے غافل نہیں کر سکتے. تو جواب کیا آئے گا؟ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. جی پیارے بچوں، تیسری آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، الا
खबरदार, या इसका माना होता है खूब सुन लो, या इसका माना होता है आगाह रहो, बिजिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तत्मइन्नुल कुलूब, दिल मुतमईन हो जाते हैं, दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब यहां पे भी हम एक एमसीक्यू बना सकते हैं कि दिलों को इत्मीनान किस चीज से मिलता है, तो जवाब क्या होगा बच्चों, बोलिए अल्लाह के जिक्र से। जी बच्चों, यहां तक समझ आ गई। अब आगे जो पैरा है वहां जरा देखिए, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल, शक्ल क्या है, वजाहत करें। बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल क्या है, वजाहत करें। तो जरा बुक पे देखिए, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है, ये एमसीक्यू बनेगा। ऑप्शन बन सकते हैं नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, नमाज। जिक्र की अफजल तरीन शक्ल क्या है, नमाज, ये इसका जवाब हो गया। वजाहत करें, इसका जवाब ये होगा क्योंकि जिक्र की तीनों किस्में इसके अंदर शामिल है। कौन सी वो जिक्र की किस्में हैं, कल्बी, लिसानी और अमली। जिक्र की तीनों शक्लें चूंकि इस नमाज में शामिल है, लिहाजा ये जिक्र की अफजल तरीन शक्ल है। अब एक और एमसीक्यू हम यहां बनाते हैं कि जिक्र की तीनों किस्में किस चीज में शामिल है, नमाज में, रोजा में, ज़कात में, हज में, तो हम जवाब क्या देंगे, नमाज में। फिर एमसीक्यू बनेगा। अच्छा, तो चूंकि जिक्र की सारी सूरतें इसके अंदर शामिल है, इसलिए इबादात में सबसे पहले किस चीज को फर्ज किया गया, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जवाब आएगा नमाज। तो यहां भी एमसीक्यू बनेगा। तो पता ये चला जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है, क्योंकि जिक्र की तीनों सूरतें इसके अंदर, तीनों किस्में इसके अंदर शामिल है, और सबसे पहले नमाज को ही फर्ज किया गया, इसलिए जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है। अब बेटा यहां पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, जिक्र की अक़साम लिखें, जिक्र की अक़साम लिखेंगे। अब यहां पे एक और एमसीक्यू हम बनाते हैं, जिक्र की किस्में हैं 3, 4, 5, 6, तो जवाब क्या होगा, 3। ये तो एमसीक्यू बना। जिक्र की अक़साम लिखें, तो बेटा हम यहां लिख देंगे जिक्र की अक़साम 3 है, वो कौन सी है, कल्बी है, लिसानी है और अमली। तो ये जिक्र की अक़साम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब हो गया। तो आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुताबिक हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका की रिवायत करदा हदीस लिखें। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से मुताल्लिक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत लिखें। जी प्यारे बच्चों, ये बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है, बड़ी बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को लंबा क़याम करते, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत करते, तो सैयदा पाक नबी पाक से पूछती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आपके लिए तो अल्लाह ने जन्नत लिख दी है, फिर भी आप इतनी लंबी चौड़ी इबादत करते हैं, इतनी आप इबादत करते हैं कि आपके पाए मुबारक, पांव मुबारक, पिंडलियां मुबारक आपकी सूज जाती हैं, वर्म आ जाते हैं, तो हुजूर आप इबादत कम किया करें, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, आपके लिए तो जन्नत लिखी जा चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, यानी मैं अल्लाह की इबादत इस गर्ज से करता हूं ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। जी प्यारे बच्चों, इसका ये जवाब हो गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान में किस तरह किया गया, इसके लिए 3 आयात दी गई हैं, वो तीनों ही नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का के तज़किरा से मुताल्लिक है। तो पहली आयत जो है उस पे हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इबादत का तज़किरा कुरान में किस तरह किया गया? जी बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके जवाब में आप तीनों आयत में से किसी भी आयत का तर्जुमा लिख सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान में किस तरह किया गया? तो सबसे पहले आयत देखते हैं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर में लिपटने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में कयाम कीजिए मगर थोड़ा सा। रात में ज्यादा कयाम ना करें, रात में कयाम करें मगर थोड़ा सा करें। निस्फहु, या तो आधी रात कर लें, अविनकुस, या इससे भी कम कर लें, मिनहो, इससे भी, कलीला, थोड़ा सा। मतलब यह है कि रात में आप कयाम करें लेकिन मुख्तसर करें, मुख्तसर से मुख्तसर करें। इसी तरह अगली आयत आप देखें, उसके अंदर भी यही बात की जा रही है। दूसरी आयत में यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा है। उस आयत में देखिए जरा किताब में, व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। व मिनल लैली, रात के हिस्से में से, रात में से, फस्जुद लहू, उसको सजदा कीजिए, रात का कुछ हिस्सा उसको सजदा कीजिए। यानी रात में ज्यादा देर इबादत न करें, आपको तकलीफ होगी, अल्लाह से गवारा नहीं होगी, तो लिहाजा रात में कुछ वक्त अल्लाह को सजदा करें। लेकिन आगे क्या फरमाया? वसब्बिहु लैलन तवीला, हाँ, उसकी पाकी बयान करें, तस्बीह करें, जिक्र अज़कार करें, लंबी रात तक करें। लेकिन अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि आप ज्यादा देर कयाम ना करें, ज्यादा देर इबादत में मसरूफ न रहें, कहीं आपके पाए मुबारक मुतवर्रम ना हो जाएं, तकलीफ ना हो आपको जो रब से गवारा नहीं। जी प्यारे बच्चों, आगे जो तीसरी आयत है उस पे हम एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं और वो नबी पाक की इबादत का तज़किरा भी है। और वो ये जो तो दो आयतें हमने पढ़ी, ये ओवरऑल इबादत का तज़किरा था, कोई सी भी इबादत। लेकिन जो अगली हम आयत पढ़ने जा रहे हैं वो खास तौर पे नफली नमाज का तज़किरा है। शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली नमाज से मुताल्लिक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखे। जी प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली नमाज से मुताल्लिक कुरानी आयत का तर्जुमा। अब इसी पर एक और स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं, वो क्या है जरा और से देखिए। नमाज तहज्जुद की फजीलत में कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। जी बेटा, नफली नमाज से मुताल्लिक या नमाज तहज्जुद की फजीलत में ये आयत है। तो आइए जरा देखें, ये चूंकि नबी पाक की इबादत का तज़किरा आ रहा है, इसलिए इबादत के तज़किरा भी इस आयत में है। नफली नमाज का भी ये क्वेश्चन हमने बनाया और नमाज तहज्जुद का भी क्वेश्चन बनाया। चले इसका जवाब देखते हैं। आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। तर्जुमा देखिए बच्चों, व मिनल लैल, ये जो लफ्ज मिन आता है ना, मिन, ये एक हर्फ है और इसका माना होता है से। आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th में कि मिन का माना से होता है। आगे है लैल, लैल का माना होता है रात, रात में से, मतलब रात का कुछ हिस्सा, सारी रात नहीं है, आधी रात नहीं है, रात में से कुछ हिस्सा। क्या कीजिए? फतहज्जद बिही, सो उसमें तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए, उसमें तहज्जुद पढ़ा करें। ये जो तहज्जुद आप पढ़ेंगे ये आपके लिए क्या है? नाफिलतन लका, नाफिला, नाफिला का मतलब होता है इजाफी, नफल। नफल का लफ्ज आपने पढ़ा, नाफिला का पढ़ा, अनफाल का पढ़ा, नफल का लफ्ज आपने पढ़ा, इन सब का मतलब होता है इजाफी। बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सूरत अनफाल का तर्जुमा पढ़ा था। शुरू में लफ्ज अनफाल आपने देखा, यसअलूनका अनिल अनफाल। अनफाल क्या होता है? अनफाल नफल की जमा होती है और नफल जो है वो इजाफी माल को कहते हैं, इजाफी चीज को कहते हैं।
चूंकि नमाज तहज्जुद ये बाकी फराइज से इजाफी इबादत है, इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें जो आपके लिए जायद चीज है, जायद चीज है। अच्छा, इसका फिर फायदा क्या होगा? इसका आपको फायदा क्या होगा? अल्लाह इनाम क्या अता फरमाएगा? आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है। आसा का माना क्या होता है? बोलिए बच्चों, करीब है। अन यबअसका, आपको अता करेगा, आपको देगा, रब्बु का, आपका रब, मकाम महमूदा, मकाम महमूद में जगह। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे नबी आप नमाज तहज्जुद पढ़ा करें रात के एक वक्त में, तो जो आपके लिए जायद चीज है आपका रब आपको मकाम महमूद अता करेगा। मकाम महमूद क्या है? अब इस पर डिस्कस करें तो बड़ा वक्त दरकार है। मकाम महमूद मुख्तसर ये समझें, मकाम का मतलब मर्तबा और महमूद का माना है हम्द किया गया, तारीफ किया गया। यानी अल्लाह अपने नबी की ऐसी तारीफ करेगा जो कोई भी नहीं कर सकता। सारी कायनात मिलकर करे, अल्लाह की तारीफ से किसी करोड़वें दर्जे का भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो अल्लाह तमाम आले माशर के सामने अपने प्यारे महबूब की तारीफ करेगा, यह मकाम महमूद है। या जन्नत में अल्लाह अपने महबूब को वो मकाम अता फरमाएगा जो सबसे अरफा वाला होगा, ये मकाम महमूद है। इस पे और भी डिस्कस हो सकती है। चले अब इससे आगे चलते हैं। ये तो 3 आयतें आपने पढ़ ली नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादत के तज़किरा से मुताबिक। अब प्यारे बच्चों, आगे एक एमसीक्यू बन सकता है कि अफज़लुल जिक्र ये क्या है? अफज़लुल जिक्र किसको कहते हैं? तो उसमें 3-4 कलमे लिखे जा सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो मतलब इनमें से ये आप राइट ऑप्शन क्या सर्कल करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं या से क्या मुराद है? तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने बुक में देखना है। ये जो अल्फाज हैं अरबी जुबान के, आपको बारहा कहा गया कि अरबी या तो लिखनी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अरबी में लिखने जरूरी हैं। तो ये भी वही सवाल है कि जिसका जवाब आपने अरबी जुबान में लाजमी लिखना है, उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपने लिखना है। बुक में देखें आपके ये 3 अल्फाज लिखे हुए हैं। बेटा ये देखें 33 बार क्या है? सबसे पहले लफ्ज है सुबहान अल्लाह। दूसरा जो लफ्ज है, इसको अक्सर बच्चे गलत लिख जाते हैं, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है। बाज़ दफा बुक में भी गलती हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने लिखना है। जी प्यारे बच्चों, इसको जरा गौर से देख लें, नजर आ रहा है आपको? जी प्यारे बच्चों देखें जरा गौर से, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ दफा बुक की प्रिंटिंग में भी गलती हो सकती है, यहां पे अलिफ लगा देते हैं, अलिफ नहीं लगानी। अगर अलिफ लगा दी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा। तो इसको जरा गौर से देखें। इसी तरह 34 बार क्या होगा? अल्लाह अकबर। जी प्यारे बच्चों, हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। ये है तस्बीह फातिमा। इसके बाद कुछ मसनून अज़कार हैं, कुछ मसनून अज़कार हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से साबित हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार किए, जिक्र किए, जो दुआएं की, वो सारे मसनून अज़कार हैं। मिसाल के तौर पे खाना खाने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? ये मसनून जिक्र है। खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? ये मसनून जिक्र है। मस्जिद में दाखिले की दुआ, मस्जिद से वापस आने की, यानी ये सारी जितनी भी दुआएं हैं ये मसनून अज़कार हैं। जी प्यारे बच्चों, अब मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको इसकी आउटलाइंस देता हूं। सबसे पहले हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। अच्छा प्यारे बच्चों देखिए जरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी? जिक्र इलाही से क्या मुराद है? जिक्र की अक़साम
और उसके फजाइल लिखें। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहां देखें जिक्र इलाही से क्या मुराद है, इसमें ये मफहूम आ जाएगा। मैं इधर आपको आउटलाइंस दे देता हूं। मफहूम, उसके बाद अक़साम है, इसके बाद हमने अक़साम की हेडिंग देनी है और अक़साम में ये तीनों किस्में जो मैंने यहां लिखी हैं ये लिख के इनको एक्सप्लेन भी करना है। क़ल्बी ज़िक्र क्या होता है, लिसानी ज़िक्र क्या होता है, अमली ज़िक्र क्या होता है, ये हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखेंगे। क़ल्बी दिल से अल्लाह को याद करना, दिल में अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना। लिसानी जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, कलिमात तशक्कुर अदा करना, कलिमात खैर अदा करना। जी आपस में अच्छे अखलाक एक दूसरे को देना, बांटना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना, काम करना, जिक्र की अमली सूरत यानी नमाज पढ़ना या कोई भी अच्छा काम करना, ये अल्लाह का जिक्र कहलाता है, अमली। तो प्यारे बच्चों यहां इसकी अक़साम डिटेल से लिख देंगे। उसके बाद ये दो चीजें हो गई, जिक्र का मफहूम हो गया, जिक्र की अक़साम हो गई। अब तीसरे नंबर पे पूछा गया जिक्र के फजाइल। बेटा ये सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है, यहां हम हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग जिक्र के फजाइल कुरान की रोशनी में। कुरान की रोशनी में यहां पे देखिए 6 आयत दी हुई है। पहली आयत जो दी हुई है यानी अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, चूंकि अब हम एक लॉन्ग, वहां तो मैंने आपको पढ़ाए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, अब हम चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कसरत जिक्र का हुक्म, या कसरत जिक्र लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, जितना भी कम से कम छोटे अल्फाज में हेडिंग हो बहुत अच्छा होता है, कसरत जिक्र का हुक्म। उसके बाद बेटा दूसरी आयत जो है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको तिजारत, खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, वहां आप लिख दें मोमिनों की सिफात, यानी मोमिन लोग जो होते हैं उनकी क्या सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान की। इसी तरह तीसरी जो हेडिंग है, तीसरी आयत है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यहां आप लिख दें इत्मीनान क़ल्ब। जी प्यारे बच्चों ये 3 आयतें जो शुरू में है वो हम यहां लिख देंगे इस पोर्शन में, कुरान की रोशनी में। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान में जो दिया गया, 3 आयत वहां दी गई, वो तीनों आयत भी हम इसी पोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये कुरान की रोशनी में हम जिक्र के फजाइल बयान कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा इबादत का तज़किरा। इबादत का तज़किरा, इसमें आप तीनों आयत लिख देंगे। पहली आयत पे ये लिख दें, दूसरी आयत जो है यानी या अय्युहल मुज़म्मिल वाली आयत इसके नीचे लिख दें। उसके बाद है अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, उसमें मुख्तसर सी आप हेडिंग दे दें अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की पाकी। इसी तरह तीसरी आयत है नमाज तहज्जुद वाली, वहां पे नफली नमाज लिख दें आपकी मर्जी, नमाज तहज्जुद लिख दें वो आपकी मर्जी है, नमाज तहज्जुद। जी प्यारे बच्चों ये पोर्शन नमाज जिक्र का कुरान की रोशनी में ये मुकम्मल हुआ। आइए अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, जिक्र की फजीलत या जिक्र के फजाइल हदीस की रोशनी में। जिक्र के फजाइल हदीस की रोशनी में, तो इसमें चूंकि 1-2 हदीसें दी हुई हैं तो हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। मसलन हजरत आयशा की रिवायत है या इससे पहले जिक्र की अफजल तरीन शक्ल बयान की गई, वो भी एक हदीस ही है, तो हम जिक्र की अफजल तरीन शक्ल लिखेंगे। एक हेडिंग ये आ जाएगी जिक्र की अफजल शक्ल, उसके बाद हजरत आयशा की रिवायत, ठीक हो गया। इसके बाद हम एक हेडिंग दे देंगे अफवलुल जिक्र, उसके बाद आखिर में हम देंगे तस्बीह फातिमा, ठीक है जी, तस्बीह फातिमा देंगे। और उसके बाद आखिरी पोर्शन एक बेटा रह गया है, जरा गौर कीजिए
आखिर में लिखा गया मसनून अज़कार कुछ ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो अज़कार लिए गए और वो अज़कार जो है मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मौजूद है। तो आखिरी हेडिंग यहां आएगी मसनून अज़कार। जी बेटा, इसके अंदर मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वो मुख्तलिफ जो अज़कार हैं, मुख्तलिफ जो जिक्र हैं, मुख्तलिफ दुआएं हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।